Hello students, welcome to your grammar class. Today we are going to study about conjunctions. So first of all, what are conjunctions? Conjunctions are the words that are used to join two sentences, phrases or clauses. Those are known as conjunctions. For example, Tom and Jerry are best friends. टॉम और जेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ये नॉर्मली टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बना रहा है. सेकेंड, द पेपर इज ऑन द डेस्क. नाउ इज दिस अ कंजंक्शन? नो, दिस इज नॉट अ कंजंक्शन. दिस इज अ preposition. Preposition tells the relation between two sentences and conjunction simply joins two sentences. So see, paper is on the desk. On is telling the relation between paper and desk. And is simply joining two sentences. Tom and Jerry are best friends. Yes? So now let's start with our conjunctions. First conjunction is as. So as shows the way of the work. It shows the way of the work. जब हम किसी काम के तरीके को शो करते हैं, हम वहां पे as का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you wrote as I said. तुमने लिखा जैसे मैंने कहा था. और I taught them as I was asked. मैंने वैसा पढ़ाया जैसा मुझसे कहा गया था. सो वे ऑफ द वर्क की बात हो रही है, तरीका बताया जा रहा है किस तरीके से काम हो रहा है. नेक्स्ट इज टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग. जब हमें किसी चीज का रीजन बताना होता है तब हम लोग as का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, as he was not well, I did not disturb him. as बिगनिंग में आया. as he was not well, I did not disturb him. Now, as and because can be used in place of each other. Okay? But there is a condition. When reason is important, we will use because. But when the effect of the reason is important, we will use as. Now see in this sentence, as he was not well, I did not disturb him. Now here, effect is important. What is the effect in the sentence? That I did not meet him. जब हमने I did not meet him की बात करी तो हम लगाएंगे as. But I did not disturb him because he was not well. Now reason is important. मैंने उसको क्यों डिस्टर्ब नहीं करा? क्योंकि वो बीमार था. और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मैं उससे मिलने नहीं गया. तो जब इफेक्ट पे एम्फेसिस आएगा, इफेक्ट पे जोर आएगा, वी विल यूज as. बट व्हेन द रीजन विल बी इंपॉर्टेंट, वी विल यूज because. Now next is to add an information or which we have just said. कोई हम इंफॉर्मेशन एड ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, as you know. जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, as you know. So when we will tell the information, we will use as. For example, as you know, we believe in a quality education. हम थर्ड पर्सन को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि I believe in a quality education. Okay. Now next is or which we have just said. For example, as I told you earlier. ओके जो चीज हमने जस्ट अभी कही हो वहां पे हम लोग as का यूज करते हैं. नाउ फोर्थ यूज ऑफ as इज व्हेन वन इवेंट इज हैपनिंग बट अदर हैपन एट द सेम टाइम. जब एक इवेंट हो रहा हो और एक और साथ में स्टार्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर मदर कॉल्ड यू. सो यू विल राइट माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज वॉचिंग द वीडियो. Or you can write, as I was watching the video, my mother called me. अब दो events हो गए. First was that you are watching a video. Second, that your mother called you. So when one event is happening and second occurs at the same time, we will use as. So our next conjunction is as well as. It means साथ साथ. So let's come to its rules. It does not means and. As well as does not means and. As well as का मतलब and नहीं होता है. And is used when two sentences are equal. जब दो sentences equal होते हैं तब हम and का यूज करते हैं. But when we give more emphasis on one sentence, then we use as well as. जब हम एक sentence के ऊपर ज्यादा emphasis देते हैं, मतलब ज्यादा जोर देते हैं, emphasis means ज्यादा जोर देते हैं, तो हम as well as यूज करते हैं. For example, running is healthy as well as it make you feel good. रनिंग हेल्थ के लिए अच्छी तो है ही, साथ ही साथ वो हमें अच्छा भी फील कराती है. या हम किस पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं? as well as it makes you feel good, कि वो हमें अच्छा फील कराती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
I know you as well as your parents. मैं तुम्हें तो जानता ही हूं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी जानता हूं. Next is though and although. There is no difference between these two. It means मगर. Though and although means मगर. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दो जो है आपका इनफॉर्मल वर्ड है एंड although जो है फॉर्मल वर्ड है. Means though is mainly used in spoken English and although is used in written language. ठीक है. Now come to its rules. Those are when we talk about facts. जब हम किसी fact की बात करते हैं then we use though and although. और when we talk about a contrasting situation, जब हम किसी contrasting situation की बात करते हैं. For example, Mrs. Sharma is rude although she is kind. या though Mrs. Sharma is rude but she is kind. आप contrasting situation बता रहे हो इसके अंदर कि वो rude भी है पर साथ ही साथ kind भी है. और we can take another example. Although it rained a lot, I enjoyed the holiday. हालांकि बहुत बारिश हुई मगर मैंने हॉलीडे को एंजॉय किया. तो where we talk about मगर, जहां पे जिन सेंटेंसेस में हम मगर का यूज करते हैं and we talk about facts and contrasting situation, we use though and although. We will take one more example. I do not usually drink coffee though I had 2 cups today. Now, this is a fact that he doesn't take coffee. Okay, now I don't usually take coffee though. फैक्ट आ गया वो कॉफी नहीं पीता है हमेशा, लेकिन मगर उसने आज 2 cups ऑफ कॉफी पिए या लिए. सो फैक्ट्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, वी हैव टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स. So let's come to next. Next conjunction is so and therefore. Same as though and although. So is informal word and therefore is a formal word. Means so is used in spoken English and therefore is used in written language. Now in this we talk about reasons. जहां पे हम रीजन स्टेट करते हैं वहां पे हम so और therefore का यूज करते हैं. But there is one difference in between these two. That is, so is used when there are 2 independent clauses. मतलब जब 2 sentences अपने आप में complete होते हैं then we use so. But when 2 sentences are dependent upon each other, जब 2 sentences एक दूसरे के ऊपर dependent होते हैं then we use therefore. For example, I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. Now these 2 sentences are complete in itself. देखो, I was feeling hungry. ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. अगर मैं आगे का सेंटेंस रिमूव कर दूं then we are clear that I was feeling hungry. मैं हंग्री फील कर रहा था. So I made myself a sandwich. I made myself a sandwich. मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया. अगर मैं इन 2 सेंटेंसेस को अलग अलग लिखती हूँ then we are clear that I was feeling hungry. I made myself a sandwich. So when 2 sentences are completed in themselves, we use so. Now come to therefore. Okay, she is mischievous, therefore she is punished. अगर मैं लिखूं she is punished और she is mischievous, so she is punished क्या अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है? No, it is dependent upon she is mischievous, therefore she is punished. वो mischievous है इसलिए उसको पनिश किया गया. Okay, now come to so that. So that means ताकि. जहां पे हम यूज करते हैं वर्ड ताकि, there we use so that. For example, he worked hard so that he may get good marks. उसने हार्ड वर्क किया. क्यों किया? ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम्स में. So that he may get good marks in exams. We take one more example. My son went to the bed early yesterday. मेरा सन बेड पे चला गया कल जल्दी सो गया. So that he could get up on time this morning. ताकि वो इस सुबह जल्दी उठ सके. मेरा सन कल जल्दी सो गया ताकि वो आज सुबह जल्दी उठ सके. So my son went to bed early yesterday so that he could get up on this morning. Early. Now our next conjunction is if and whether. If means अगर, की, मगर. जहां पे हमें ये वर्ड्स यूज करने होते हैं we use if. And whether is used चाहे की. Okay, now let's come to its rules. If is used to show conditions. जहां पे हम conditions show करते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं?
इफ यू मेट मी आई विल हेल्प यू। कंडीशन क्या है? इफ यू मेट मी, अगर तुम मुझसे मिलोगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। सो कंडीशन क्या होगी? आई विल, इफ यू मेट मी आई विल हेल्प यू। और इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक। रीजन क्या है इसके अंदर? कंडीशन क्या है आपकी? अगर रेन हुई तो हम अपनी पिकनिक कैंसिल कर देंगे। नाउ कम टू वेदर। वेदर इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव पॉसिबल। अगर ऑल्टरनेटिव्स जो होती हैं वो पॉसिबल हो जाए, यस और नो दोनों चीजें हो सकती हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? वेदर। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव द पिकनिक वेदर इट रेन्स और नॉट। हम पिकनिक पर जाएंगे चाहे बारिश हो या ना हो। इफ में हमने क्या लिखा था? इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक। अगर बारिश हुई तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। बट इन वेदर वी यूज वी विल हैव द पिकनिक। हम पिकनिक पे जाएंगे ही जाएंगे वेदर इट रेन्स और नॉट, चाहे बारिश हो या ना हो। दोनों कंडीशंस आ गई, ऑल्टरनेटिव कंडीशंस आ गई यहाँ पे, चाहे हो चाहे ना हो। देन कम टू yet. Yet is used in place of in spite of that, जहां पे हमें बताना होता है in spite of that, मतलब कि तो भी, अभी तक, जहां पे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं yet. Weather is cold yet we had a great time. बहुत ठंडा था, weather is cold, तब भी अगर हम यहाँ पे yet की जगह in spite of that यूज करते हैं, weather is cold in spite of that we had a great time. अब समझ में आया यट का मतलब? वेदर इज कॉल्ड यट, तब भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ही वॉन्ट हैव सेंट द मेल यट। उसने अब तक मेल नहीं भेजी, तो अब तक का क्या हमने लगाया? यट। ठीक है, ही वॉन्ट हैव सेंट द मेल यट। नाउ कम टू अनलेस। अनलेस इज यूज इफ नॉट एक्सेप्ट व्हेन, मतलब कि जब ये काम हो जाएगा उसके बाद आगे की बात होगी। जब एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद उसके आगे की बात करेंगे, उससे पहले नहीं होगी। और इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, ये हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट प्ले अनलेस यू प्रोवाइड द गुड्स। मैं तब तक नहीं खेलूंगा जब तक तुम मुझे गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे। आया समझ में? अनलेस का मतलब क्या हुआ? जब तक, यदि नहीं। ठीक है, सो जब तक तुम मुझे गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक मैं नहीं खेलूंगा। और यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। जब तक तुम ये सब खाना नहीं छोड़ोगे तुम इल रहोगे या इल हो जाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बट। बट मीन्स लेकिन। ही इज पुअर बट हैप्पी। वो पुअर है लेकिन वो हैप्पी है। For example, we will take one more example of it. I studied well for the exam, but I don't think I did well. मैंने एग्जाम की अच्छे से पढ़ाई तो करी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। Now let's come to since. To show the reasons. Reasons हमने as में भी पढ़े थे, and we also talked about reason in so and therefore. Now it is again in since. So when we talk about reasons or to show the time and the date, जब हम किसी टाइम को या किसी डेट को मेंशन करते हैं तो हम since का यूज करते हैं। So let's take one example. Since I was poor, I could not buy a new car. मैं पुअर था इसलिए मैं कार नहीं खरीद पाया। Since I was poor, I could not buy a new car. और he hasn't eaten since 7 o'clock. टाइम आ गया कि उसने कुछ नहीं खाया है since 7 o'clock, जहां पे टाइम की बात हो या कोई रीजन देते हैं या कोई डेट मेंशन होती है तो हम क्या यूज करते हैं? since. ओके, आई हैव बीन वर्किंग हेयर since June. अगेन since June, टाइम मेंशन हो रहा है, मैं जून से अब तक यहाँ पर काम कर रहा हूं, मैं जून से यहाँ पर काम कर रहा हूं। नाउ आइदर और नाइदर नोट, दे आर द इजीएस्ट। या तो या नहीं, जहां पर हम यूज करते हैं या तो ये, तो हम क्या यूज करते हैं? आइदर एंड और। आइदर ही और शी विल कुक द डिनर, या तो वो या उसकी सिस्टर कुक करेगी डिनर। नाउ कम टू नाइदर नॉर।
Neither my friends nor the bookstore has the book. ना तो मेरी किसी फ्रेंड के पास बुक है, ना ही किसी बुक स्टोर के पास बुक है. So we will use neither nor. Now after. After is a preposition and a conjunction. Okay, after means के बाद. ठीक है. For example, after he completed his graduation, he went to London. वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कहाँ चला गया? लंदन चला गया. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, he went to London after he completed his graduation. और he has come after me. वो मेरे बाद आया. Okay? Now next is as long as. As long as is used when we talk about duration और कंडीशन. जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं या कंडीशन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एज लॉन्ग एज. फॉर एग्जाम्पल, यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड. यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई? क्या कंडीशन आ गई? तुम्हें कब सक्सेस मिलेगी? जब तुम हार्ड वर्क करोगे. तो कंडीशन क्या है? हार्ड वर्क कंडीशन है. अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी. चलो अब एक ड्यूरेशन का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. I will remember this day as long as I live. ड्यूरेशन आ गया. जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे ये डे याद रहेगा. So I will remember this day as long as I live. Now next is then. To show the comparison. जब हम किन्हीं दो चीजों में comparison बताते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? then का. The pain of the mind is worse than the pain of the body. हमने कंपैरिजन करा कि जो बॉडी पेन है वो तो ठीक है, लेकिन जो माइंड का पेन है, जो माइंड में आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो बॉडी पेन से ज्यादा वर्स्ट है. सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. और यू आर टॉलर देन द एलेक्स. तुम एलेक्स से भी लंबे हो. तो कंपैरिजन हो गया कि आप तो लंबे हो ही, लेकिन एलेक्स आपसे भी लंबा है. नाउ एंड इज अ वेरी सिंपल कंजंक्शन विच जॉइन टू सेंटेंसेस. जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था. टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो एंड यूज टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट स्पीक्स टू एनीवन एंड नो वन स्पीक्स टू हर. ना वो किसी से बात करती है और ना कोई और उससे बात करता है. सो दीज आर टू सिंपल सेंटेंसेस एंड वी ज्वाइन देम विथ एंड. नाउ नेक्स्ट इज टिल एंड until. It indicates when something will happen in the beginning or in the end. जब कोई चीज शुरू होगी या खत्म होगी then we will use till and until. Now again, till is a formal word. Till is a informal word and until is a formal word. Okay, so in spoken English we use till and in written we use until. Okay, for example, he played hockey until evening. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, he played hockey till evening. उसने इवनिंग तक हॉकी खेला. और यू कैन राइट let's stay home till storm stops. आप यहाँ पे until भी यूज कर सकते हो. let's stay home until the storm stop. जब तक storm रुक नहीं जाता. Now, next conjunction is as if and as though. It is used when we talk about the imaginary situation. जब हम कोई चीज imagine करते हैं, जैसे कि वहां पे हम क्या यूज करते हैं? as if and as though. For example, she felt as if all her worries had gone. उसने imagine करा, उसको ऐसा लगा जैसे कि उसकी सारी worries गायब हो गई हैं, खत्म हो गई हैं. और He looks as if he has seen a ghost. उसको देख के ऐसा लग रहा है, इमेजिन कर रहे हैं वो लोग सिर्फ कि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसने कोई गोस्ट देख लिया है या भूत देख लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज while. हम लोगों ने as में लास्ट रूल क्या पढ़ा था? दैट व्हेन one situation is there but another happens, है ना? So same is with while. When one thing is in process, जब कोई एक सिचुएशन चल रही है but the second happens at the same time, then we will use while. For example, they were walking home while discussing political issues. वो लोग घर जा रहे थे लेकिन क्या करते हुए जा रहे थे? पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे थे. तो दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक टाइम पे हो रहे हैं. So we will use while. Hope this chapter is clear to you.
Thank you. Have a nice day.